Good afternoon, everybody. My name is Rakesh Kumar. I'm your ACC tutor for performance management from Kalyan Educational Institute. And today we do the lecture 2 here from ABC Coasting. Okay. Then we already discussed about the syllabus here. Yeah. So we already discussed section A. Section A consists MCQ based question. It's a 15 question, right? 15 into 2 marks MCQ based question exam pattern, and section B also contain 3 questions which each comprise 5 questions for 2 marks each. This one also for MCQ and scenario based, small scenario based MCQ. Then section C contains 2 questions long. This one a descriptive question or a written question. So the syllabus is divided among the 4 broad areas: specialist cost and management accounting technique, decision making technique, budgetary and control, performance management and control. तो इन को एरिया को हमने कवर अप करना है। पार्ट ए जो हम अभी कर रहे हैं, इसमें 5 टॉपिक्स हैं जो कि सारा का सारा क्या है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो वो सेक्शन ए में पूछा जा सकता है आपको, या वो फिर सेक्शन बी के लिए पूछा जा सकता है। देन पार्ट बी, सी एंड डी आर from whole syllabus, or you can also check with section A can be also, and maybe the section C for written question also. The rest all syllabus they can ask you either on the MCQ basis or can long question 20 mark question also. So here, so this one exam pattern syllabus, and we already do traditional costing. And we already discussed about the why traditional absorption costing were developed in time when, कहाँ पे जो absorption costing है उसका यूज हम करते हैं। absorption costing का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे narrow range of product, one, a similar operation and the similar proportion of overhead, second, overhead cost only very small fraction of total production cost, direct labor hours and direct material account. सो ये 3 कंडीशन है जहां पे कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। लाइक दिस वन आल्सो कैन ट्रेडिशनल मेथड, इसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ठीक। देन मॉडर्न बिजनेस have experienced a dramatic fall in the cost of processing information। जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की वो कॉस्ट है वो क्या हो गई, मॉडर्न इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो गई। यूज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या कि ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी ओवरहेड कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। of total production cost, that labor has become much less important। तो पहले क्या था, जो लेबर की कॉस्ट हाई होती थी, राइट, ट्रेडिशनल, बट जब हमने ऑटोमेटिक मशीनों का यूज किया तो अब क्या है, लेबर की कॉस्ट की वजह कौन सी हाई हो गई, ओवरहेड की कॉस्ट, क्योंकि जो सारा का सारा लेबर का काम किन्हों ने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। मशीन की वजह से जहां हम पहले 5 लेबर का यूज करते थे, अब वहां पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन इज इनफ टू ऑपरेट मशीन। सो इसकी वजह से क्या हुआ, लेबर का यूज कम होने लग गया प्रोडक्शन में, जिससे कि लेबर की कॉस्ट क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, और ओवरहेड की कॉस्ट हाई हो गई। Therefore, it is now difficult to justify the use of direct labor hour as a basis for absorbing
ओवरहेड टू प्रोड्यूस इलास्टिक प्रोडक्ट कॉस्ट, जिससे कि हम जो पहले सिंगल यूसेज के बेसिस पे ओवरहेड को ऑब्जॉर्व करते थे वो अब जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब वो रिलायबल नहीं रहा। मैनी रिसोर्सेज आर यूज्ड इन नॉन वॉल्यूम रिलेटेड स्पोर्ट एक्टिविटी। जो मैनी रिसोर्सेज है वो क्या ले रहे थे, नॉन वॉल्यूम। नॉन वॉल्यूम कौन से होते हैं, जो वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड नॉन वॉल्यूम, which have increased due to AMT। जो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस की वजह से, AMT की वजह से हो रहे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी के अपडेशन की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से लग रहे हैं। इनका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं। Non-volume related support activity are activity that support production, but there the level of support activity and so the level of cost depend on something other than a production, कि जिसका बेस क्या हो, वॉल्यूम मत, वो नॉन वॉल्यूम कॉस्ट कौन सी होती है, जिनका लगने की वजह उसका वॉल्यूम ना हो, मतलब उसका वॉल्यूम से कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम कॉस्ट कौन सी, सच से सेटिंग अप प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन रन को सेटअप करेंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जितनी प्रोडक्शन निकलेगी, दिस इज योर वॉल्यूम कॉस्ट। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड इंस्पेक्शन, this support activity assists the efficient manufacture of wide range of products are not in general affected by change in production volume। इन पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। They tend to vary in the long term according to range and complexity of product manufacture rather than the volume of output। तो इनका क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, या मतलब कुछ इसमें डिफिकल्टी आ गई मैन्युफैक्चर करने में, इसकी वजह से जो आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ा, उसको कहते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। The wider the range and the more complex the product, the more support service are required। कि जितना आपका प्रोडक्ट का रेंज ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसको उतनी ही सपोर्टिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज अगर आप दो तरह की है, अगर आप सिंगल, आप क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, आप इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, सिंपल गोल्ड को कोटिंग करें। कोटिंग किसकी करे हो, या सिंपल इसको पॉलिश करें। देन योर प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक कोटिंग के लिए मशीनरी चाहिए, आपको सिंपल उसको गोल्ड को डिप करना है और आपका प्रोसेस फिनिश है। बट इन केस यू आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा, आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको पहले गोल्ड की कटिंग करनी पड़ेगी। यस, गोल्ड की कटिंग करोगे, देन आपको उसे क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। देन नीड टू मेल्टिंग, देन उसे एक शेप देनी पड़ेगी और डिजाइन देने पड़ेंगे। फिर उसे क्या करना पड़ेगा, फाइनल प्रोसेस करना पड़ेगा या फिनिशिंग करनी पड़ेगी। उसके पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड में कुछ अदर मटेरियल को मेल्ट करके मिलाना पड़ेगा, जिससे कि वो हार्ड हो जाए, हार्ड फॉर्म में आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, वो मटेरियल शेप में नहीं आएगा। देन फिफ्थ पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। सो नाउ पहले तो आप क्या करते थे, इंडस्ट्री में सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी को पॉलिश करते थे, और आपका प्रोडक्ट क्या था,
आपका जो प्रोसेस था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था. बट नाउ when you are going to produce inside jewelry industry, then you need to do all this activity and your activity become more complex. आपकी जो एक्टिविटी है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गई, जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विस लगेगी, आपको एडिशनल मशीनों की जरूरत है, लेबर की जरूरत है. आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए, आपको चाहिए न्यू मशीनरी फॉर कटिंग, मशीनरी पहले चाहिए कटिंग के लिए. फिर क्या चाहिए, आपको एक बॉयलर या मेल्टिंग के लिए वो चाहिए इक्विपमेंट. फिर आपको चाहिए अदर मटेरियल, गोल्ड को शेप लाने के लिए, टू मेक गोल्ड शेप और हार्ड. फिर आपको चाहिए फ्रेम, जिसमें कि आप गोल्ड के मेल्ट को मटेरियल को वो काम कर सकते हैं, आप उसको शेप दे सकते हैं. फिर आपको चाहिए फिनिशिंग के लिए इक्विपमेंट. तो इन सारी वजह से आपका जो प्रोडक्ट हुआ, देन फाइनली आपको क्या चाहिए, पॉलिशिंग का इक्विपमेंट. तो दिस वन अ फाइनल स्टेप, तब जाके एक ज्वेलरी कंप्लीट होती है. तो इन सारे प्रोडक्ट को अगर आप इन हाउस में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विस चाहिए. इसकी वजह से आपकी ओवरहेड कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. The wider the range, more the complex the product, the more support services are required. Traditional absorption costing system, which assume that all products consume all support resources in proportion to production volume, tend to allocate. कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें माना जाता था कि जो सारी सपोर्ट सर्विस है वो किसके बेसिस पे होती है, वॉल्यूम या लेबर आवर्स के बेसिस या आवर्स के बेसिस पे होती है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. जो मॉडर्न इंडस्ट्री कहती है कि जो रिसोर्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, अनवॉल्यूम रिलेटेड होते हैं. वॉल्यूम रिलेटेड मतलब जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का, और जो नॉन वॉल्यूम होते हैं उनका वॉल्यूम से कुछ भी लेना देना नहीं. टू क्रिएट अ प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड, to create a proportion of overhead to high volume product which cause relatively little diversity hence use fewer support services. जब भी आप ज्यादा proportion of overhead volume प्रोडक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, fewer services को यूज करते हैं. Too small proportion of overhead to low volume product which cause greater diversity and therefore use more support services. Then a predetermined overhead absorbing rate is used to smooth out seasonal fluctuation overhead cost and to enable unit cost to calculate quickly throughout the year. जब भी आप क्या करते हैं, आप बजटेड ओवरहेड का प्रेडिक्शन लगाते हैं साल पहले से. आपने बजटेड ओवरहेड का प्रेडिक्शन लगाया कि मेरे जो फिक्स ओवरहेड हैं वो कितने होंगे, 80,000, और आपने वॉल्यूम का भी प्रेडिक्शन लगाया 16,000. तो जो आपका ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आया दैट इज योर $5, राइट. तो आपको पता है कि आपको हर यूनिट पे ओवरहेड की कॉस्ट कितनी चार्ज करनी है, $5. सो better volume may related to total unit direct labor hours machine hour. If either or both of the actual overhead cost or activity volume different from the budget, the use of rate is likely to lead what is known as a under absorb or over. अब क्या है, या तो क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंजेस हो गया, जब आपने क्या किया, आपने बजटेड ओवरहेड प्लान किया, दिस वन योर प्लानिंग.
जस्ट प्लानिंग राइट 80,000 और आउटपुट आपने कितना यूनिट पे लगाया और जंक्शन किया 16,000 यू गेट द $5 फॉर ईच ओवरहेड पर यूनिट तो आपको चार्ज कितना करना था $5 का सो हियर अगर मैं बजटेड में कहूँ मटेरियल का कॉस्ट है 20 लेबर का कॉस्ट मैंने बजटेड लिया 5 सॉरी देन ओवरहेड मैंने $5 का प्रोडिक्शन किया और मेरे पास जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 40 बट एक्चुअल में हुआ क्या व्हाट हैपेंड टू एक्चुअल जो मेरा वॉल्यूम था जो मेरा ये 16,000 वाला वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया इंक्रीज कितने से हो गया 17,000 से मैंने बनाने 16,000 थे बट मेरी लेबर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी उन्होंने क्या किया जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया और जो मेरा ओवरहेड का कॉस्ट था वो चेंज नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरी जो पर यूनिट की कॉस्ट है 80,000 अपॉन 17,000 जो मेरी पर यूनिट की कॉस्ट क्या है 4.70 आ गई सो मेरा जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट था वो चेंज हो गया ठीक है सो अब क्योंकि मैंने ओवर प्रेडिक्ट किया था दिस इज कॉल्ड ओवरहेड ओवर ऑब्जॉर्प्शन अकर्ड इफ अगर मैं $5 चार्ज करूंगा बट मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है 470 की आ रही है तो मेरी होनी क्या चाहिए थी एक्चुअल में क्या आना चाहिए था 20 15 and 4.17 so this may be 39.17 तो मैंने क्या किया ओवर चार्ज किया दिस इज कॉल्ड ओवर अंडर ऑब्जॉर्प्शन सॉरी ओवर ऑब्जॉर्प्शन अकर इफ ऑब्जॉर्व इज ग्रेटर देन एक्चुअल देन ओवर यहाँ पे क्या था ऑब्जॉर्व था $5 का और एक्चुअल क्या था 470 का राइट देन सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर मेरे जो कॉस्ट है कॉस्ट वो इंक्रीज हो गई कॉस्ट इंक्रीज हो गई जो लगने मेरे 80,000 थे बट वो लगे कितने 90,000 के और मेरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट भी सेम रहा सो आई गेट व्हाट 90,000 अपॉन 16,000 सो मेरा जो पर यूनिट का कॉस्ट कितना आया 5.625 तो जो अब मुझे कॉस्ट थी पहले मटेरियल की 15 लेबर की सो मेरा टोटल कितना आया सो 40.625 तो अब मैंने किया मैंने जो ऑब्जर्व किया मैंने परीक्षण कितने का किया था 5 दिस वन लेस देन द एक्चुअल दैट्स व्हाई मेरे पास सिनेरियो कौन सा आता है अंडर ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन का या अंडर ऑब्जॉर्प्शन अकर if the observed is a less than actual. Then to calculate over or under observation follow 3 steps OER budget overhead cost into budget level of activity एक्टिविटी में क्या आ सकता है यहाँ पे कुछ भी या तो वॉल्यूम आएगा या फिर आवर्स में या तो लेबर आवर्स या फिर वो मशीन आवर्स कुछ भी हो सकता है एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड माइनस ओवरहेड ऑब्जॉर्व इज कॉल्ड अंडर और ओवर ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन देन सेकंड हम करेंगे टुडे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी अटेम्प्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कि हमने
Definition of ABC: activity-based costing. Activity-based costing is a method of costing which involves identify the cost of main sport activity and the factor that drive the cost of each activity. कि हमें जो एक्टिविटी है उसका पता लगाना है, हमें कोस्ट इनकर्ड की वजह हमें किस बेसिस पे इनकर्ड हुई, इस कोस्ट को इनकर्ड होने के लिए कौन सी एक्टिविटी या कोस्ट पूल जिम्मेवार है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो अगर हम एक्टिविटी में इन एक्टिविटी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम अपनी कॉस्ट को बेटर वे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी अल्टीमेटली कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी. Activity based costing is a method of costing which involves identify the cost of main sport activity, the factor that drive the cost of each activity. Sport overhead are charged to product by observing a cost on the basis of product use of factory driving the overhead. The major idea behind activity based costing are as follow. Activity cost कि cost को लगने की कौन से कारण है, why these costs incurred. So, manufactured product create demand for the sport activity. Cost are assigned to the product on the basis of product consumption of this activity. कि cost किसके बेसिस पे लगेगी, जितनी आप इस एक्टिविटी को यूज करेंगे। ABC is extension of absorption costing, specifically considering what costs each type of overhead category to occur. Example, what the cost driver are. Each type of overhead absorbed using a different basis depend on the cost driver. Cost driver is a factor that has most influence on the cost of activity. कि cost driver कौन से होते हैं जो कि उस एक्टिविटी को लगने को मेन कारण होते हैं, दैट इज योर एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एक्टिविटी के लिए या कोस्ट पूल के लिए। दिस वन, production setup cost, number of production setup, machine oil and machine repair, number of machine hours, supervisor salary, number of labor hours, ordering cost and handling customer order, number of order. Then material handling cost is the number of production run. Step in ABC, you need to कौन से 5 स्टेप हैं जिन्हें हम ABC को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइजेशन मेजर एक्टिविटी दैट सपोर्ट द मैन्युफैक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देन ग्रुप ऑब्जर्व ओवरहेड इनटू एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ड्राइवन, दिस आर नोन एज ए कॉस्ट पूल। कि जो 80,000 है उसको हम एक्टिविटी के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे। Identify the cost driver for each activity. Example, what caused the activity cost to be incurred? Calculate the cost per unit of cost driver. Observe activity cost into production based on use of cost driver. ये सारी एक्टिविटी करके हमें क्या करना है, ओवरहेड पर यूनिट निकालना है। इलस्ट्रेशन 1 अगेन द आज हम करेंगे एबीसी कोस्टिंग के थ्रू। सेम WXYZ आउटपुट दिए हैं हमको, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इन अ पीरियड, हमको एक्टिविटी दी है, दिस वन है एक्टिविटी और कॉस्ट पूल। देन सेकंड वन व्हाट, द सेकंड वन इज अ मशीन आवर्स, दिस वन आल्सो फॉर एक्टिविटी। सो यहाँ पे हमें जनरल ओवरहेड को एक्टिविटी बेस दिया हुआ है, गिवन है कि शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, सेटअप कॉस्ट इतना है, एक्सपेक्टिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, देन प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। थोड़े वो डिस्कस अबाउट एबीसी कॉस्टिंग। सो स्टेप 1, ग्रुप प्रोडक्शन ओवरहेड इनटू एक्टिविटी, हाउ दे आर ड्राइवन। यहाँ पे 30,800 है। Identify the cost driver. Example, what costs for incurred overhead?
शॉर्ट रन के लिए हमने जो अजम्पशन किया है मशीन आवर्स, और सेटअप कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन रन। ये हमारा प्रेडिक्शन है कि जो बेस्ट सूटेबल है, जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसी को हमने बेसिस पे अजम्पशन लिया। अदरवाइज आपके क्वेश्चन में अगर गिवन है वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कीजिएगा कि आपने कौन सी अजम्पशन फॉलो की, तो इसका स्टेप मार्किंग होगा। अगर वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर के लिए चाहिए। देन स्टेप थर्ड, कैलकुलेट ओएआर, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच एक्टिविटी, शॉर्ट रन वेरिएबल अपॉन मशीन आवर। तो इसकी कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे 440 से, देन आई गेट $7 ओएआर पर मशीन आवर। ऐसे ही सेटअप कॉस्ट को हम प्रोडक्शन रन से डिवाइड करेंगे, एंड आई गेट दिस फिगर फॉर ओएआर। देन स्टेप 4, ऑब्जर्व द एक्टिविटी इनटू प्रोडक्शन। आपको करना क्या है, ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट वाइज। तो आपको करना क्या, शॉर्ट रन वेरिएबल हमारे पास ओएआर था 7 और हमारे पास आउटपुट क्या था 10। हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 10, देन 7 इंटू मशीन आवर के बेसिस पे करेंगे ना। सो दिस वन सॉरी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 इंटू 1 इंटू 10, तो आई गेट 70। ऐसे ही हमको क्या करना है 50। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन कितना है 760, और हमारे पास यहाँ पे कितने दिए हुए हैं 2, तो हमको सिंपली जनरल मल्टीप्लाई करना है, देन आई गेट 1560। ऐसे ही हमको प्रोडक्शन रन दिया है, और हमको करना क्या है 650 इंटू 2, then again 550 into 2. So this one I get the W1. So I get total overhead cost for each activity, and I need to just divide by the volume. I get per unit overhead cost per unit, and then final and fifth step, direct material and direct labor का cost दोनों ही मेथड में सेम रहेगा, बट आपका जो ओवरहेड कॉस्ट आपने ऑलरेडी एक्टिविटी बेस्ड निकाला है, उसकी वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे समरी, कन्वेंशनल कॉस्ट में W की कॉस्ट आ रही थी 95, बट ओवरहेड ABC कॉस्टिंग में कॉस्टिंग आ रहा है 428। ऐसे ही जो यहाँ पे डिफरेंस निकालेगा, अब हम इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि किसकी वजह से इन डिफरेंस आया, राइट। This figure might suggest that the traditional volume-based absorption costing system is flawed because the low-volume product W and X are not being charged with a fair share of the cost of overhead support activity, कि इनके साथ इन्होंने प्रॉपर वे से कॉस्ट को अप्रोचमेंट नहीं किया। More specifically, traditional absorption costing may be unsuccessful for two reasons. दो कारण हैं जिसकी वजह से ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। इट अंडर एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, कि जो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है उसको भी अंडर एलोकेट करता है कॉस्ट को, अंडर एलोकेट। Or simple, if under allocate overhead cost to smaller product, here W and Y, with just 1 hour of work needed per unit, and over allocated over to larger product where X and Y get particular. So इससे क्या है कि जिस प्रोडक्ट में लेबर्स आवर्स कम लग रहे हैं, उसके बेसिस पे भी अगर हम मशीन आवर को बेसिस मानेंगे, तो उसके बेसिस पे भी ये क्या करता है, अंडर एलोकेट करना है। और जिस पे लेबर आवर्स ज्यादा लग रहे हैं उसको क्या कर रहा है, ओवर एलोकेट कर रहा है। सो दिस वाज बेसिक ड्रॉबैक फॉर ट्रेडिशनल मेथड। देन इम्प्लीकेशन ऑफ एबीसी, कौन कौन सी जगह पे हम एबीसी को अप्लाई कर सकते हैं, विच प्लेस।
which place we can apply ABC costing. When production overhead are higher related to prime cost, example service sector, when there is a whole diversity of product range, जहाँ पे wide variety of product range हो, when there are considerable difference in the use of resources by product, where consumption of resources not driven by volume, जहाँ पे consumption non volume related use हो, वहाँ पे हम ABC costing का यूज करते हैं. ABC has both advantage and disadvantage and tend to be more widely used by larger organizations and the service sector. जो बड़ी इंडस्ट्रियों में और सर्विस सेक्टर में मेनली यूज होता है वो ABC कॉस्टिंग होता है. Benefit of ABC: the use of ABC provide opportunity for cost control and reduction by efficient management of cost driver. कि अगर आप cost driver को कंट्रोल कर दो, एक्टिविटी को कंट्रोल कर दो, तो डेफिनेटली you can control cost also. Better costing information used to assist pricing decision, re-analysis of production and output product mix decision, profitability analysis by customer product line etc. and more elastic estimate of cost. कि ये मेथड को हम क्या मानते हैं, एक्यूरेट मानते हैं एलोकेशन के लिए. तो इससे क्या है, जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आएगा वो मोर रिलायबल आएगा, जिसकी वजह से हमें डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, हेल्पफुल होगा, जिसकी बेसिस पे हम जो अपने डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से कर पाए. सो आज का चैप्टर फिनिश हुआ. थैंक्स फॉर लिसनिंग.